Welcome to Sci Learning by Swaliha Ansari. Today we are going to solve some problems based on meter bridge and Wheatstone's bridge. So let us first begin with the first question. Here is my first question, and the question says that four resistances of 4 ohm, 8 ohm, X ohm and 6 ohm are connected so as to form a Wheatstone's network. If the network is balanced, find the value of X. So, what is given to you is R1 is 4 ohm, R2 is 8 ohm, R3 is X ohm and R4 is 6 ohm in a Wheatstone's network. अब Wheatstone's network में always remember one thing, जब हम Wheatstone's network बनाते हैं in such a way, तो this is R1, this is R2, this is R3 and this is R4. It means हम 1 2 3 4 इस तरीके से जाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे नहीं आते, ठीक है? दैट इज 1 2 3 4 इस तरीके से नहीं आते. कैसे आते हैं? 1 2 3 4. Okay, so I have the values like this is 4 ohm, this is 8, this is X and this is 6. So let us move further. Wheatstone's की बैलेंसिंग कंडीशन क्या थी? सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था हमने. इट वॉज R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4. वी विल जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. तो ये क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू X अपॉन 6. दिस इज 1 जा 2 जा. करेक्ट. कैंसिल हो गया दोनों. अब हमारे पास क्या बचा? 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू X अपॉन 6. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू X. इट मीन्स X इज इक्वल टू 6 इंटू 1 अपॉन 2. 2 1 जा 2 3 जा. X बिकम्स 3 ohms. ठीक है, सिंपल था, बेसिक था एक्चुअली, राइट? सो यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ unknown resistance is 3 ohms. ठीक है? So now let us move towards the next problem. What does the problem says? Resistances in the branches of Wheatstone's bridge are 30 ohms, 60 ohms, 15 ohms and a series combination of X and 5 ohms. तो हम पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं. जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर. देखो क्या कहा. R1 क्या है? 30 ohms का. R2 क्या है? 60 ohm का. R3 is 15 ohms and R4 it is a combination of two series resistance, जो एक है X ohm और दूसरा है 5 ohm. ठीक है? सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ X. हमें X की वैल्यू पता करना है. फाइन. सो सेम फॉर्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई. हम यहाँ पे क्या करेंगे? दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस होल इज R4. करेक्ट. तो क्या हो जाएगा? R1 is 30 ohm, R2 is 60 ohm, R3 is 15 ohm and R4 becomes X plus 5 ohm. Correct. Again we will substitute the values in the balancing condition of Wheatstone's bridge, which is R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. So it will give you 30 upon 60 is equal to 15 upon X plus 5. The 0 gets cancelled.
3 1 जा 3 2 जा, तो क्या बचा हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू 15/x प्लस 5. अगेन यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 15. अब 2 इंटू 15 क्या होता है 30 ओम, मीन्स x प्लस 5 30 ओम का है. प्लस 5 यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, करेक्ट. अगर ये माइनस हो गया तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 30 माइनस 5, it is x is equal to 25 ohms. So you get the value of unknown resistance. Therefore you can write the unknown resistance is of 25 ohms. Correct? So ये भी easy था. Now we'll move towards the third problem. What does the third problem says? It says that in a Wheatstone's bridge PQRS, the ratio arms P and Q are nearly equal. The bridge is balanced when R is equal to 500 ohm. मतलब हमने एक कंडीशन सेट की जिसमें 4 रेजिस्टेंस है P, Q, R और S. ठीक है. अब P और Q की वैल्यू नियरली सेम है. ऐसे कंडीशन में बैलेंसिंग कंडीशन हमें तब मिलता है जब R की वैल्यू 500 ओम है. ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई. अब सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है, इफ वी इंटरचेंज P एंड Q, अगर हमने P और Q की जगह को इंटरचेंज कर दिया तो बैलेंसिंग कंडीशन हमें उस वक्त मिल रही है जब R की वैल्यू 510 है. फाइन. So we have to find the value of S and the ratio of P and Q. So easy है, कोई बहुत टफ नहीं है. क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे तो we can proceed further. So let us directly move towards the solution. What does the first condition says? So for balanced condition, that is for balanced Wheatstone's bridge, हमारी कंडीशन क्या है, R1 upon R2 is equal to R3 upon R4, बट यहाँ पे R1 R2 R3 R4 क्या है, it is P Q R and S. So I can write P upon Q is equal to R upon S. ये हमारी बैलेंसिंग कंडीशन है. अब हमें फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है. फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में R की वैल्यू 500 ओम है. इट मीन्स आई कैन राइट P अपॉन Q इज इक्वल टू 500 अपॉन S. ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकेंड केस क्या कह रहा है, इन सेकेंड केस P और Q इंटरचेंज हो गए. करेक्ट. मीन्स in second case P and Q are interchanged with each other, right? दोनों की जगह चेंज हो गई. और इस केस में R की वैल्यू इज 510 ohms. तो अगर मैं इसको ये वैल्यू में इस कंडीशन में फिक्स करूं तो क्या हो जाएगा, P की जगह Q ने ले ली, Q की जगह P ने ले ली. मीन्स आई कैन राइट Q अपॉन P इज इक्वल टू R की वैल्यू हो गई 510 और S वैसे ही के वैसा ही है. राइट. अब एक चीज हमें और याद रखनी है और वो ये है कि जब हमें ऐसी कोई कंडीशन मिले P अपॉन Q और Q अपॉन P, तो ऐसे केस में हमें दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है. फाइन. सो लेट मी मल्टीप्लाई दिस. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये क्या हो जाएगा, P अपॉन Q इंटू Q अपॉन P इज इक्वल टू 500 अपॉन S इंटू 510 अपॉन S. तो ये Q Q P P कैंसिल, बचेगा क्या, 1 इज इक्वल टू 500 इंटू 510 अपॉन S इंटू S इज S स्क्वेयर. तो S स्क्वेयर यहाँ चला जाएगा. S स्क्वेयर इज इक्वल टू 500 इंटू 510. तो S क्या होगा, रूट ऑफ 500 इंटू 510.
when you'll solve this, you'll get the value of S as 504.97 ओम. फाइन. तो हमें S की वैल्यू मिल गई. अब हमें रेशियो पता करना है P और Q का. तो हम S की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें P एंड Q का रेशियो पता चल जाएगा. और वैसे भी उसने कहा है कि P और Q नियरली सेम है, राइट? तो लेट अस फाइंड द वैल्यू कि P एंड Q की वैल्यू, P अपॉन Q की वैल्यू क्या आती है. देखो, अगर नियरली सेम है तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 आनी चाहिए, क्योंकि अगर P और Q दोनों इक्वल हैं तो दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 बचेगा. देखते हैं आता है या नहीं आता है. नियरली, क्योंकि नियरली सेम है, देयरफॉर इट शुड बी नियरली इक्वल टू 1, राइट? अब देखो, P अपॉन Q इज इक्वल टू 500 अपॉन 504.97. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कुछ 0.9901. क्योंकि ये 0.99 है, आई कैन टेक इट एज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1. सो आई कैन से P अपॉन Q इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1:1. सो मुझे P अपॉन Q का रेशियो मिल गया. क्या रेशियो मिला? इट इज 1:1. और मुझे S की वैल्यू भी मिल गई थी. यही दो चीज हमें पता करनी थी, राइट? सो हियर इज द सॉल्यूशन फॉर योर third problem. Now let us move towards the fourth one. An unknown resistance X is placed in a left gap of an unknown resistance X is placed in the left gap and a known resistance of 60 ohm is placed in the right gap of a meter bridge. देखो, अभी हम मीटर ब्रिज की बात कर रहे हैं. मीटर ब्रिज मीन्स हमारा कुछ इस तरीके से लेफ्ट एंड राइट गैप बनता था, राइट? तो ये हमारा लेफ्ट गैप है, ये हमारा राइट गैप है. यहाँ पे इज सेइंग कि लेफ्ट गैप में एक अननोन रेजिस्टेंस है और राइट गैप में एक नोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 60 ओम्स है. ओके. Null point is obtained at 70 centimeter. 70 centimeter from the left gap means ये जो LX है इसकी वैल्यू 70 सेंटीमीटर की है. तो LR की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बी 30 सेंटीमीटर. क्यों? क्योंकि ये वायर कितने का होता है? 100 सेंटीमीटर का, विच इज 1 मीटर. तो 100 minus 70 will give you 30 centimeter. We have to find the value of unknown resistance. It is too easy to be found. देखो, मीटर ब्रिज हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 में. उसमें हमें क्या पता चला था कि कैसे पता करते हैं? X अपॉन R इज इक्वल टू LX अपॉन LR, राइट? सो यहाँ पे हमारा R क्या है? 60 ओम, करेक्ट? हमारा LX क्या है? 70 सेंटीमीटर. LR क्या है? It is 100 minus 70 which is 30 centimeter, correct? हमें पता क्या करना है? The value of X. So let us start with the solution. X upon R is equal to LX upon LR. So X क्या है? नहीं पता. R क्या है? 60. ये क्या था? 70 and LR was 30. 0 0 कैंसिल कर देंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 7 इंटू 60. तो x इज इक्वल टू 7 इंटू 60 अपॉन 3. 3 1 जा 3 20 जा. तो x इज इक्वल टू 20 इंटू 7 इज 140 ओम्स. हो गया. द अननोन रेजिस्टेंस इज ऑफ 140 ओम्स. So this was our fourth problem. अब हम आगे बढ़ते हैं towards the fifth one. ठीक है? In a meter bridge, the length of the wire is 100 centimeter. At what position will be the balance point obtained if two resistance are in the ratio
2:3, मतलब हमारा जो x और r है उसका रेशियो 2:3 का है. लाइक मीन्स हमें गिवन क्या है, x अपॉन r इज 2/3. ठीक है, ये गिवन है. हमें पता क्या करना है, और हमें क्या दिया हुआ है, l क्या है, हमें l पता करना है. हमें टोटल लेंथ दी है, राइट. टोटल लेंथ वैसे भी हमें पता है 100 सेंटीमीटर की होती है मीटर ब्रिज की. हमें पता क्या करना है, l, दैट इज द स्मॉल l. हमें लेंथ पे, दैट इज किस लेंथ पे नल पॉइंट मिल रहा है, दैट इज गैल्वेनोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन कहाँ मिल रहा है. फाइन. सो व्हाट वी विल डू, फॉर्मूला क्या है, x अपॉन r इज इक्वल टू l अपॉन 100 माइनस l. राइट. तो x अपॉन r तो हमें पता है 2/3 है, l अपॉन 100 माइनस l. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 100 माइनस l इज इक्वल टू 3l. ये मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 200 माइनस 2l इज इक्वल टू 3l. ये इधर पे माइनस है, यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा. 200 इज इक्वल टू 3l प्लस 2l. तो 200 क्या हो गया, 5l. सो 5 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा, l, सॉरी, 200 अपॉन 5. 5 1 जा 5, 40 जा. करेक्ट. सो l क्या हो गया, 40 सेंटीमीटर. राइट. तो बैलेंस पॉइंट विल बी ऑब्टेन एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट गैप. So the balance point will be obtained at 40 centimeter from the left gap. ठीक है, easy है. Let's move towards the next problem. When resistances P and Q in the left gap and right gap respectively of a meter bridge, the null point divides the wire in the ratio 1:2. इसका क्या मतलब हो गया, it means जब हमारा P और Q, that is P लेफ्ट गैप में है, Q राइट गैप में है, इट मीन्स x जो होता है हमारा वो p है और r जो होता है वो q है. राइट. सो ऐसी कंडीशन में हमें नल पॉइंट तब मिल रहा है, जब नल पॉइंट हमें मिल रहा है तो लेंथ 1:2 में डिवाइड हो रही है. इट मीन्स p अपॉन q हमें क्या मिल रहा है, 1/2. तो अगर मैं इस केस को देखूं, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2p विल बी q इंटू 1 और q इंटू 1 मीन्स q. मीन्स q की वैल्यू क्या है, इट इज 2 टाइम्स p. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. इफ p एंड q आर इंक्रीज्ड बाय 20 ohms ईच, मीन्स अब हमने क्या किया, p और q की वैल्यू को बढ़ाई. p में 20 ohms ऐड किया और q में भी 20 ohms ऐड किया. ठीक है. द नल पॉइंट डिवाइड्स द वायर इन द रेशियो 3:4. मीन्स अब इसका रेशियो क्या हो गया, 3/4 का हो गया. फाइन. ये हमारा फर्स्ट केस था और ये हमारा सेकेंड केस हो गया. अब हमें पता क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q. क्या करेंगे, यहाँ पे Q की जगह 2P लिख सकते हैं क्योंकि वो हमें फर्स्ट केस से मिला है. राइट. सो व्हाट आई विल डू, P प्लस 20 अपॉन Q की जगह 2P प्लस 20 इज इक्वल टू 3/4. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू पी प्लस 20 इज इक्वल टू 3 इंटू 2p प्लस 20. दिस विल गिव यू 4p प्लस 80 इज इक्वल टू 6p प्लस 60. ये 4p यहाँ लेके जाओ, ये 60 यहाँ लेके आओ, क्या होगा, 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 6p माइनस 4p.
4p यहाँ पे पॉजिटिव था, इधर गया नेगेटिव हो गया, 60 यहाँ पे पॉजिटिव था, इधर आया नेगेटिव हो गया, तो क्या बचा 20 इज इक्वल टू 2p, मतलब 2p क्या हो जाएगा, 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट। 2p हमारा क्या है 20 है, p क्या हो जाएगा 20/2, तो p बिकेम 10 ओम, राइट। अब हमने क्या कहा, q क्या है, इट इज 2 into p, तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 into 10, दैट इज 20 ohms। तो यहाँ पे हमें p भी मिल गया और q भी मिल गया, वही फाइंड करना था, द वैल्यू ऑफ p एंड q which is 10 ohm and 20 ohm respectively. Fine. So let us move towards the last problem of today's lecture. The question says, in comparing the resistances of two coils P and Q with the help of a meter bridge, the balance point is obtained when the sliding contact is 30 centimeter from the zero end of the wire. Okay, that is from the left gap. Then P and Q are interchanged and balance point is obtained at 120 centimeter from the zero. Means अगर हमने P and Q की वैल्यू को as it is रखा तो हमें नल पॉइंट 30 सेंटीमीटर पे मिल रहा था, लेकिन अगर हमने P और Q की जगह को एक्सचेंज किया तो बैलेंस पॉइंट 120 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। नाउ यू विल से 120 सेंटीमीटर पे बैलेंस पॉइंट कैसे मिल सकता है, करेक्ट, क्योंकि हमारा मीटर ब्रिज का वायर तो 100 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द मीटर ब्रिज वायर, तुम्हें वो वायर की लेंथ पता करनी है। इट मीन्स द वायर इज नॉट ऑफ 100 सेंटीमीटर, वो 100 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो आपको ये पता करना है कि वायर की लेंथ एक्चुअली कितनी है। एंड उसके साथ साथ एक चीज और पता करनी है, दैट इज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस P एंड Q, मीन्स P अपॉन Q की वैल्यू भी पता करनी है। सो लेट अस मूव। So what I will say that I will take the length of the meter bridge wire be L. Okay, let L be the length of bridge wire. अगर हमने मीटर ब्रिज की वायर की लेंथ L ले ली तो फर्स्ट केस के हिसाब से क्या होगा, फर्स्ट केस क्या कह रहा था कि हमें बैलेंसिंग कंडीशन कब मिली 30 सेंटीमीटर पे, राइट। तो P अपॉन Q क्या हो जाएगा 30 अपॉन L, एक तरफ का 30 है तो दूसरी तरफ का टोटल लेंथ -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये हो गई हमारी फर्स्ट केस। अब सेकंड केस पे क्या होता है, सेकंड केस पे हमने P और Q को इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज किया मीन्स P की जगह Q एंड Q की जगह P ले लिया, करेक्ट, मीन्स अब वो P अपॉन Q की जगह Q अपॉन P हो गया। ऐसे केस में हमें 120 सेंटीमीटर पे हमारी लेंथ हमारा नल पॉइंट मिल रहा है, तो यहाँ पे L माइनस 120 हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। मैंने थोड़ी देर पहले भी एक प्रॉब्लम में बताया था कि जब हमें P अपॉन Q और Q अपॉन P मिले तो हमें दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। सो लेट अस मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस। क्या हो जाएगा, P अपॉन Q इंटू Q अपॉन P इज इक्वल टू 30 अपॉन L माइनस 30 इंटू 120 अपॉन L माइनस 120। ये सब कैंसिल होके 1 हो गया, तो 1 is equal to 30 into 120 the whole upon L minus 30 L minus 120। अब ये यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, मीन्स ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा L minus 30 L minus 120 is equal to 30 into 120।
ठीक है। सो ऐसे केस में आई विल मल्टीप्लाई दिस, इसको मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा हम यहां पे देखते हैं। ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सो इट विल गिव मी एल स्क्वायर माइनस 120L माइनस 30L प्लस 3600 इज इक्वल टू 3600। दिस इज एल स्क्वायर माइनस 150L प्लस 3600 इज इक्वल टू 3600। अब 3600 यहाँ है तो प्लस है, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। मीन्स एल स्क्वायर इज इक्वल टू 150L, सॉरी माइनस 150L इज इक्वल टू 3600 माइनस 3600। अब 3600 में से 3600 गया तो 0 बचा। मीन्स एल स्क्वायर माइनस 150L इज इक्वल टू 0। अब L दोनों में है, कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे एक ही L बचा इज इक्वल टू 0। अब ये L इधर पे है मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। मीन्स L माइनस 150 इज इक्वल टू 0 अपॉन L। अब 0 अपॉन L का मतलब तो 0 ही होता है। मीन्स L माइनस 150 इज इक्वल टू 0। तो अब ये माइनस 150 यहाँ जाएगा तो प्लस 150 हो जाएगा। मीन्स L इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। मीन्स हमारे ब्रिज का वायर की लेंथ 150 सेंटीमीटर थी, करेक्ट, वो हमें मिल गया। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द ब्रिज वायर इज 150 सेंटीमीटर। अब हमें P अपॉन Q का रेशियो भी पता करना है, तो L की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करो। इक्वेशन नंबर 1 क्या था? P अपॉन Q इज इक्वल टू 30 अपॉन L माइनस 30। L की जगह 150 लिखते हैं, क्या हो जाएगा? P अपॉन Q इज इक्वल टू 30 अपॉन 150 माइनस 30। अब 150 माइनस 30 इज 120, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू 30 अपॉन 120। 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 4 जा। सो P अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। देयरफॉर P अपॉन Q का रेशियो क्या हो गया? 1:4 का। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू 1:4 हो गया। ठीक है, इजी था, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आता है, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, रिलेटेड टू द वीडियो।